that the entire Dharavi closed down when I was transferred. एक आम आदमी सेकंड क्लास में ट्रैवल करता है तो उसकी दो ही समस्या होती है, एक रोज़गार और दूसरी शिक्षा। अगर ये दोनों हो तो वो सेकंड क्लास में ट्रैवल नहीं करता। जैसे मैं अटल बिहारी जी के बारे में बताना जी, जी, चाहूँगा कि हम लोग कानपुर जा रहे थे और उस वक्त मैं तो पीछे ही था, लेकिन बात हो रही थी कि रोड क्यों नहीं अच्छी हो सकती है। 30 साल में सर कोई एलिगेशन नहीं हुआ, जब तक कि आप सर्विस में थे कोई एलिगेशन नहीं हुआ। सर जैसे ही आपने रिटायरमेंट किया तो एलिगेशन सामने आए और वो अभी तक साबित नहीं हुआ। Much. Jai Hind, Jai Maharashtra. So, thank you so much for joining our show, AR Discovery. So, you have been one of the most recognized, honest officer in the field. You started your career from 1986 until 2022. So, how your journey began in policing? Well, 86 I qualified for UPSC and I joined the academy, got trained, and I was very lucky that at that time cadres were allocated by roster like different states. So Yes. I was very lucky to get to Maharashtra state. I had no idea of Maharashtra prior to that. Okay. I had traveled to Bombay earlier, but never with this idea that I'll probably be working here and serving the people. The idea is why police. It was very clear that the place that I come from, the state, these services are glorified quite a bit. And even after doing my engineering from IIT Kanpur, many of my colleagues actually joined administrative services and police services. So that's how the journey has been up and down for sure. I reached the tops when it was Dharavi riots, Yes. because I think I take it as an honor that the entire Dharavi closed down when I was transferred after in January, I think 1993, and then the government was forced to get me back, and the great honor was that a new zone was created. You know, that time there was this Zone 8 which came into being. Was the first time. I was the first DCP, and for your information and for the viewers, all communally sensitive areas which were in vicinity of Dharavi, that was Bharatnagar, Khirwadi, Yes. Behrampada, part of Wakola, and also Vileparle, formed a part of the new zone, which I had an honor to serve for 2.5 years. I mean, that's how it all So started. during the 1992, so how it began, sir? Like ये riots हुआ कैसे? उस time का तनाव माहौल कैसा था, sir? And you being into a special post, how you have handled that? मैं तो actually I was drafted on बंदोबस्त. Like I was a DCP of computer wing, and sitting on a meeting, I got a call. Very illustrious DG, Mr. Ramurthy, he called me and he said you should report to Bombay City. Mr. Baput was the commissioner, another very illustrious officer. So when I went there, it was Dharavi. I must say, it was a lot of turmoil, lot of burning, lot of firing happening, and yeah. So that was the time when I went there. But now it has been documented, and I think Sri Krishna Commission went into all this. And It was instigated by a particular group, and that led to the riots in Dharavi. But we were fortunate to be able to control it. yes, sir. And even Sri Krishna committee appreciated your work, specifically that you have performed during the Zone 8 DCP. And that was the time because we were into the Mumbai, we were facing the sudden riots, and we were not having that type of equipments as well to handle those riots. Well, that's true, because you know,
Bombay police hadn't really seen this kind of ethnic riots where Ethnic two riot. communities who are generally very close to each other start fighting. As far as the equipment goes, well, I would say that equipment ki zarurat should not be there on our citizens. And I'm in a firm believer that we should not use, like if you talk about firepower, I think that's not something that we should be using against our citizens. In very, very dire, even in a dire circumstances where you get threatened yourself, maybe you could. But I'm a votary of non-violence, and I think people in this country also believe in non-violence. Other equipment which came into being was basically communications. Those equipment even then existed actually. Wireless was there. Now better equipment came into being. So I would not say that it was a lack of equipment. Actually, the problem was that the whole thing was political. There's no question about it. Yes, sir. And it had nothing to do with the communities. Because of the political moves, this happened. Otherwise, Bombay and particularly Dharavi, for whom I vote for, is a very, very peace-living. And for all the audience, I would like to say, Dharavi is a peace-living community. They don't fight among themselves. They are into big business, and people don't know the kind of business. They are into exports, and they also have local markets. So, to have this kind of peace-loving communities being troubled and politically instigated is a very sad thing, and it's a blot on this city. We were fortunate to be able to control this. सो सर 1992 से लेकर अब तक का कम्युनलिज्म आज भी एक बग है सर इंडिया में, वो कैसे टैकल कर सकते हैं? मुझको तो ये समझ में नहीं आता कि कम्युनलिज्म को कैसे आप डिफाइन करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तब तो हमारे कोई कास्ट नहीं होती, कोई रिलीजन नहीं होता। हम वो कास्ट और रिलीजन एक सोसाइटल फ्रेमवर्क से उनको देते हैं। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो क्रिश्चियन है कि हिंदू है कि मुसलमान है। इसको बाद में एक्सप्लॉइट किया जाता है कि अरे आप इस कम्युनिटी के हैं, उस कम्युनिटी। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और जो जैसे जैसे आगे उसकी परवरिश होती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कम्युनल एंगल से सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, अग्रसर करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इस सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि एक समय आने पर ये अलगाव की भावना निर्माण करते हैं। और तो मुझे लगता है कि जो अगर कम्युनलिज्म को सही तरह से देखा जाए तो कम्युनलिज्म प्योर एंड कंप्लीट पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। इसमें हमारे समाज का, इसमें हमारे लोगों का, हमारे बच्चों का, किसी का भी कोई योगदान नहीं है। सो सर ऐसा कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल इज अ मेजर कॉज ऑफ कम्युनलिज्म? No, actually, I am saying the otherwise. It is because of the political initiatives and political thought process, जिसमें ऐसे लोगों को लगता है कि because of this kind of thought, they will be able to. अब भाई पूरी यात्राएं की गई, पूरा रथ चलाए गए, तो उसकी क्या ज़रूरत थी? अगर आपको कोई एक एक्शन करना है तो उसको इतना बड़ा रथ यात्रा के साथ तो नहीं किया जाता है। आप कुछ भी कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि ये कम्युनलिज्म जो हिंदुस्तान के ऊपर जो बातें हो रही है और जो कहा जा रहा है, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसको लोगों को समझना चाहिए। और हमारे देश में कितना भी आप $4 ट्रिलियन कहें, लेकिन हमारी जो आबादी है 140 करोड़ से ऊपर, बहुत गरीबी है और हमारे आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जी नहीं पा रहे हैं। आपस में पॉलिटिकल थॉट, उसमें मारामारी मेरे देश के लिए और किसी समाज के लिए उचित नहीं है। सो 1993 में सर आपने जो एक्शन लिया था, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी अरेस्ट किया था उस टाइम पे। तो सर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, तनाव उस टाइम पे भी था? देखिए, मैं तो उस वक्त छोटा सा डीसीपी था, लेकिन मैंने ये ज़रूर समझा था कि धारावी में जो भी कांड हो रहे हैं वो ये पॉलिटिकल लोगों के ही वजह से हो रहे हैं। और मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमने वहाँ के जितने भी कॉरपोरेटर थे सबको एक एक करके अरेस्ट किया और उसके बाद वो वहाँ पर राइट्स ख़त्म हो गए। जो अगर उनको अरेस्ट करने के बाद राइट्स ख़त्म हुए तो उसका निष्कर्ष तो आप निकाल सकते हैं कि कौन किसकी वजह से हो रहे थे। और इसमें किसी एक पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, हर पार्टी के लोग हैं। मतलब तो मैं किसी को एक चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, किसी को एक पर्टिकुलरली मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं की वजह से हुआ, किसी एक पार्टी के सब लोग थे और आपस में दोनों समाज की पार्टियाँ थी, दोनों समाज से लोग थे। So sir, during that you were icon, you were already recognized in the society, the honest,
the no nonsense officer will be the Sanjay Pandey, sir. Then later on, sir, you were given one of the major scams that it was erupted during that time, that was cobbler scam. सर आज लोगों को ये पता नहीं है सर cobbler scam क्या है सर. उस टाइम पे जो ये मेजर 1600 करोड़ का स्कैम हुआ था, तो सर आप बता सकते हैं cobbler scam क्या है? उस कॉबलर स्कैम के पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड ही बताता हूँ किस तरीके से मैं डीसीपी बना. जब मेरी ट्रांसफ़र हुआ 2.5 साल के बाद तो मुझको नारकोटिक्स में पोस्ट किया गया था. आपने जर्नी की बात की थी इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि नारकोटिक्स में मैं करीब 6 महीने के बाद मैंने खुद रिक्वेस्ट करके नारकोटिक्स से अपना ट्रांसफ़र कराया कि मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा फॉर वेरियस रीजंस, क्योंकि उस वक्त बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी हो गए थे हमारे डिपार्टमेंट के. तब जब मुझको उस वक्त एक कमिश्नर ने कोई एक बहुत इंसिग्निफिकेंट पोस्ट दी थी. उस वक्त हमारे जो लीडर थे बीजेपी के मिस्टर मुंडे, उनकी वजह से मुझको इकोनॉमिक ऑफेंसेस मिला. तो मैं तो एक्चुअली शुरुआत वहाँ से करूँगा कि उन्होंने जो अगर मुझको इकोनॉमिक ऑफेंसेस की पोस्ट न दिलवाई होती, सारे मुंबई के 10 ट्रांसफ़र रोक के मेरा ऑर्डर चेंज किया गया था. ये फैक्ट है, हिस्ट्री है. तो उसके बाद जब मैं वहाँ गया तो कई ऑफेंसेस आए जिसमें श्रेय एक्चुअली जो अगर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को मिला, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि कॉबलर्स को गवर्नमेंट और ये जो बैंक्स हैं वो उनको सॉफ्ट लोन देने, मतलब उनको 3% के ऊपर से, शायद आंकड़ा यही है, 3% के इंटरेस्ट पर लोन मिलता था. तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स थे और बड़े बड़े यहाँ पर जो इस वक्त आपके शोरूम्स हैं, इन लोगों ने सब ने कॉबलर्स की सोसाइटी बना के और बड़े बड़े बैंकों से लोन लिए. तो अब चक्कर हुआ कि जो उस वक्त एक रजिस्ट्रार साहब थे और वो काफ़ी जागृत थे. उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर कॉबलर्स की इतनी सोसाइटी हो गई, तो मतलब कॉबलर्स की पॉपुलेशन मुंबई में एक लिमिट के बाहर हुई. तो उन्होंने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और उन्होंने जब फिर हमारे सामने मुझको बताया कि देखिए संजय जी ऐसा ऐसा है, तो हम दोनों लोगों ने मिलकर जब उसका पूरी तहकीकात की तो मुख्य मुद्दा यही था कि भाई एक लिमिटेड नंबर ही चर्मकार हो सकते हैं. आप उसमें ABCD किसी का फर्जी नाम लेकर आप चर्मकार बना के उसका लोन लेके आप अपने अपने शोरूम्स और अपनी बिजनेस बढ़ा रहे हैं. तो वो ये उसका क्रक्स था और उस हिसाब से हमने इन्वेस्टिगेशन किया. तो बहुत से लोग उसमें इन्वॉल्व पाए गए और उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुई. वही एक कॉबलर स्कैम है. ओके सर, सो फेक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर लोन के लिए अप्लाई किया गया था फॉर द कॉबलर स्कैम. जी, आप एकदम सही से फरमा रहे हैं. ओके सर, थैंक यू फॉर सच अ कमेंडेबल वर्किंग फॉर द सोसाइटी सर, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा भी कुछ होगा ये लोगों को पता नहीं था कि कॉबलर स्कैम भी ऐसा कुछ चीज़ें है. बट सर ये जो एप्लीकेशन सर BMC द्वारा दर्ज की गई थी एप्लीकेशन? नहीं, ये कंप्लेंट जो है, देखिए यार, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है. उन्होंने हमारे पास ये कंप्लेंट की थी. आई तो इसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को श्रेय मैं नहीं ले सकता, बिकॉज बेसिकली इनिशिएट तो उन्होंने किया था और फिर उनके लोगों ने सारा हमको मदद किया. पहली बार ऐसा था जबकि रजिस्ट्रार के लोग हमारे साथ मिल के उन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया. हम लोग कहने के लिए मतलब हम लोग रात में भी अपने ऑफिस में रहकर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिसमें रजिस्ट्रार के ऑफिसर्स जितने भी थे वो और हमारे पुलिस ऑफिसर्स एक टीम की तरह काम किया गया. सर फ्रॉम EOD देन टू SPG, सर ये कैसे हुआ सर? देखिए EOW के बाद एक समय ऐसा आया कि कुछ मतलब इस शू स्कैम की वजह से नहीं, किसी और एक स्कैम में जिसमें एक बैंक के डायरेक्टर्स इन्वॉल्व थे, उनको हम लोगों ने अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. तो शायद वो पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट था और मेरी ट्रांसफ़र जालना की गई और जालना के बाद फिर जालना कुछ दिन के लिए गया, लेकिन उस वक्त के हमारे DG साहब ने ये समझते हुए कि ये गलत हुआ है, मेरे को हार्वर्ड जाने की परमिशन दी. मैं हार्वर्ड में फिर पढ़ने चला गया और वहाँ से लौट के आया तो मैं रेलवेज़ में था, SP पूना में. वहाँ भी मुझे बहुत चैलेंजिंग काम नहीं दिखा. मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर था और हार्वर्ड से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आया था. मेरी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी. तो लोगों ने हमको सूचित किया, समझाया कि भाई आप जो अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करेंगे तो क्या पता आपकी इन क्वालिफिकेशंस का वहाँ रिकग्निशन हो.
तो इसलिए मैंने उस वक्त अप्लाई किया। हमारे महाराष्ट्र के ही एक बहुत अच्छे और मेरे सीनियर थे, उन्होंने रिकमेंड किया, और महाराष्ट्र के काडर के ही वहाँ पर डीजी हुआ करते थे। उन्होंने, इसका अलग से इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने फिर मेरे को सिलेक्ट किया और मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय में एसपीजी में था। So, sir, how was Atal Bihari Vajpayee's government and how, as a statesman, he performed, sir? वही, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा। एक वाक़या मुझे याद है, जब शायद मेरे ख्याल से कारगिल के बारे में कुछ हुआ था, कोई इस तरह का, शायद बॉर्डर में yes, कोई अड़चने थी, तो मैं लखनऊ में उनके साथ गया था, और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त भाषण दे रहे थे। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारी तो जवाबदारी ये है कि हम अटेंटिव रहें, कि कोई सिक्योरिटी नहीं हो, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा, मतलब ऐसा था कि हम सब बह गए थे उनके बात में। हम लोग एकदम, मतलब हमको किसी ने बाजू में किसी एक आदमी ने जब कहा कि अरे अब शायद वो जाने वाले हैं, और तो मतलब उनका एक बोलने की शैली और लोगों से जो भाषण देने की शैली, मुझे नहीं लगता कि, और किस तरीके से वो आर्टिकुलेट करते थे, वो उनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी। और साथ ही कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि एसपीजी में भी कई बार हो जाता है कि लोगों को अलाउ करना है, कुछ लोगों को नहीं अलाउ करना, तो उनका हमेशा एक पिता समान उनका वो था कि नहीं, जो भी है एसपीजी वाले कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। उनके करीबी लोगों को भी वो इस तरह के निर्देश देते थे, तो मुझे तो उनका बहुत बहुत सम्मान है। ओके सर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसी फोर्स है जहां पूरा बैकग्राउंड चेक होना है कि दादा दादी क्या करते हैं, उससे रिलेटिव क्या करते हैं, एवरी बैकग्राउंड चेक के बाद में आफ्टर थरो इन्वेस्टिगेशन यू आर अलॉटेड सच पोस्ट. So sir, like as a SPG, what you have learned and what you can show to the viewer, like what is SPG is all about? सबसे बड़ी चीज़ एसपीजी में ये है कि जैसे आपने सुनते हैं कांस्टेबल्स हैं और ऑफिसर्स हैं, एसपीजी में कांस्टेबल और ऑफिसर्स की ट्रेनिंग साथ होती है। आज जो अगर मुझे कांस्टेबल्स के बारे में कोई आत्मीयता है तो शायद वो एसपीजी की देन है, क्योंकि एसपीजी में जो अब 3 महीने की जो ट्रेनिंग एसपीजी कराता है, जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स कांस्टेबल्स से लेके आईपीएस ऑफिसर एक ही स्क्वाड में साथ ट्रेनिंग करते हैं। जो अगर वो फ्रंट रोल ज़मीन में बिना किसी गद्दे के करते हैं, तो हम लोगों को भी फ्रंट रोल ज़मीन में बिना किसी गद्दे के ही कराना पड़ता है। और दौड़ने के लिए भी रोज़ सवेरे 10 किलोमीटर दौड़ना, उसके बाद एक्सरसाइजेस कराना, वो बहुत बड़ी देन है, जिसकी वजह से आज मैं इस उम्र में 62 साल की उम्र में कोई गोलियां नहीं खाता, किसी तरह के कोई मर्ज नहीं है, और मेरे ख्याल से देखने में भी मैं फिट हूँ। हाँ, तो ये एसपीजी की सबसे बड़ी देन है मेरे लिए। सो सर, इसमें बेसिकली सिलेक्शंस कैसे होता है? बीइंग आईपीएस ऑफिसर और बीइंग अदर सुपरवाइजरी ऑफिसर लाइक इंस्पेक्टर कैन अप्लाई फॉर, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में सब, जैसे आपने कहा, बैकग्राउंड चेक सब होते हैं, और आप जो क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद 3 महीना उसकी एक ट्रेनिंग होती है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि कुछ समय तक तो आईपीएस ऑफिसर्स को भी क्वालिफाई करना पड़ता था उस ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बाद में ये हुआ कि नहीं, आईपीएस ऑफिसर्स ज़्यादा उम्र के आ जाते हैं, तो उनको, जैसे हमारे साथ, जैसे 22-25 साल के कांस्टेबल के साथ मैं 37 साल का था, तो उनके साथ कम्पीट करना थोड़ा अड़चन था। लेकिन यहाँ के बहुत से लोग हैं जो उनके साथ भी कम्पीट करके आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ गए, तो बाद में वो हटा दिया गया। तो वो एक ट्रेनिंग में जो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको वापस भेज दिया जाता है, और हर 6 महीने में मेरे ख्याल से आपको फिर से अपना टेस्ट देना पड़ता है। तो जो अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, ये चीज़ आईपीएस ऑफिसर्स पर अब लागू नहीं है, पहले लागू थी। मेरे ख्याल से मैं ये बात कर रहा हूँ 2000 के 99, तो उस वक्त भी हटा दी गई थी, और अब तो शायद हटी ही होगी, बट मैं पूरी तरीके से इसके बारे में बता नहीं सकता। जी जी। सो सर, एसपीजी के बाद में सर आपने रेजिग्नेशन अटेम्प्ट किया था सर, सो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था कि आपने रिजाइन किया? बहुत सीधी सी बात है जी। उस वक्त ईयर 2000 में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इंटरनेट का रेवोल्यूशन आया था, हाँ, जिसको Y2K कहते हैं। Y2K, यस। और मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर था, और
सरकार की नौकरी में तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था यूपीएससी में 86 में, तब भी मेरे से ये पूछा गया था कि आपकी तो सैलरी पहले ही ज़्यादा है, आप यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा कि भाई मेरे को यूनिफॉर्म सर्विस में ज्वाइन करने में मेरी अपनी इच्छा है, इसलिए मैं आना चाहता हूँ। लेकिन वो समय ऐसा आया कि जब बहुत से लोगों ने जो आप नारायण मूर्ति और ये सब सुनते हैं जिनकी भी इन्फोसिस सब, तो उसे बन रही थी और इन्होंने बहुत बहुत पैसे बनाए। और पैसे किस लिए बनाए कि Y2K में, जो समझाना चाहूँगा Y2K में हुआ क्या कि जब 1900s की जो नंबर है वो 1900 तक ही लिखे थे, तो कंप्यूटर में बहुत से लोगों ने सोचा ही नहीं था कि कभी 2000 भी हो जाएगा। तो जितने भी सिस्टम थे उनको 2000 में कन्वर्ट करने के लिए हिंदुस्तान में बहुत सी कंपनियों ने बहुत पैसे बनाए। तो मुझे भी ऐसा था कि नहीं भाई मुझे को ऐसा कुछ करना चाहिए। उस वक्त हमारे आईटी के ही एक प्रोफेसर इत्तेफाकन मेरे को एक फ़्लाइट में मिल गए, आज वो नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मुझे तो लगता है कि मैं सब डिग्रियां लेके अपना, मैं जिस अपेक्षा से एसपीजी में आया था कि भाई मेरे कुछ कनेक्शन हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा ड्रीम हुआ करता था कि यूनाइटेड नेशंस में कोई नौकरी मिल जाएगी। पहले कुछ लोगों को मिली भी थी लेकिन मेरा उस तरह कुछ हुआ नहीं। तो मैंने कहा तो उनका आप हमारे को ज्वाइन करेंगे क्या टीसीएस में। तो मैंने कहा जो अगर टीसीएस मुझको अपॉर्चुनिटी देगी तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। और उस वक्त मैं कई नौकरियाँ भी ढूंढने लगा था कि मुझे थोड़ा इस तरह से लगा कि ये मैं गलत जगह पहुँच गया हूँ। भले ही ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब लोगों के साथ रहना एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी, लेकिन आपका इन पर्सन डेवलपमेंट क्या हो रहा है वो मुझे थोड़ा ख़राब लगा कि ये शायद यहाँ पर मैं अपना करियर डेवलप नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने रिज़ाइन किया। सो सर आपने जब रिज़ाइन किया था उस टाइम वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था बहुत काफ़ी सालों तक? हाँ, वो काफ़ी सालों तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। उनका कहना था कि कुछ नो ड्यूज़ नहीं हुए हैं, हमारा हाउस बिल्डिंग एडवांस है। उसको वो लोग कह रहे थे कि 8% की नहीं 18% से मार्केट रेट से आपको इंटरेस्ट, हम लोगों को गवर्नमेंट में सॉफ्ट लोन दिए जाते हैं 8% के हिसाब से, विदाउट मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। तो मेरे लिए बहुत बड़ा बर्डन था, इवन जब मैं टीसीएस में भी था तब भी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो अगर आपको यही चाहिए तो मैं विड्रॉ कर लेता हूँ रेजिग्नेशन और मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो जब मैंने विड्रॉ किया तब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो एक्सेप्ट करने के बाद फिर मैंने चैलेंज किया, क्योंकि मैंने कहा जब मैंने विड्रॉ कर लिया था और फिर भी वो 18% का डिमांड चालू ही रही। तो मैंने कहा फिर जब मैंने विड्रॉ कर लिया तो फिर मैंने सारे पैसे भी भरे और जो भी है अब मुझे ध्यान नहीं है 8% की 18% से, फिर मैंने इनको केस किया। तो वो फिर केस के बाद फिर कहानी फिर से पुलिस में शुरू हो गई। ओके, सो सर एक यूथ जो एस्पायरिंग यूथ है, जो यूपीएससी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि साहब हमें यूपीएससी करना है। अब आईपीएस बनने के बाद में लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ अचीव कर लिया। सर आप तो बहुत सीनियर लेवल पे तब तक चले गए थे, फिर बाद में सर आपने लाइक टर्न लिया लाइक फ्रॉम गवर्नमेंट टू टीसीएस। आपने सर कितने सालों तक काम किया सर टीसीएस में? टीसीएस में 3 साल काम किया। और टीसीएस में उस वक्त जब किसी ने साइबर सिक्योरिटी सुना भी नहीं था, उस वक्त टीसीएस का विजन था साइबर सिक्योरिटी का एक प्रैक्टिस शुरू करने का। मैं उनका नंबर 1 एम्प्लॉई था साइबर सिक्योरिटी के। और उस वक्त जो भी टीसीएस के बड़े सीईओज थे, मैं सीईओज को रिपोर्ट करता था, मिस्टर रावत उरई थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इसी तरह से उनका जो रिसर्च सेंटर था पूना में, वहाँ पे भी जो मेरे ख्याल से नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, हैंड होल्ड किया। और पहला बार ऐसा हुआ कि टीसीएस वैसे जनरली कोडिंग वोडिंग का काम करती है, वो कंसल्टेंसी में वो भी इस तरह की कंसल्टेंसी में सिक्योरिटी की उन्होंने फ्लोट की। तो मैंने वहाँ 3 साल एज ए हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी काम किया। और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है टीसीएस से एसोसिएट होना, टीसीएस में रहना। और टीसीएस ने आज जो अगर मैं रिटायरमेंट के बाद भी जो अगर कुछ कर सकता हूँ तो ये सारी देन उस टीसीएस के 3 साल के एक्सपीरियंस की है। सो सर हमारे व्यूवर्स के लिए सर आप बता सकते हो साइबर सिक्योरिटी होता क्या है सर? देखिए, साइबर सिक्योरिटी का बहुत सिंपल सा, साइबर तो कंप्यूटर को कहते हैं। और कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कंप्यूटर का डेस्कटॉप ही नहीं है, कंप्यूटर का मतलब नेटवर्क्स है, कंप्यूटर का मतलब जो भी आप इंटरनेट का डेटा है। देखिए, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू साइबर सिक्योरिटी का कैसे हुआ, ये चीज़ मैं जो अगर व्यूअर सुन रहे हैं उनको समझाना चाहूँगा। देखिए, जब कंप्यूटर्स बने तो हम कंप्यूटर्स को जब काम करने लगे, जब हम आईआईटी में थे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे। एक ही कंप्यूटर था, उसमें कई टर्मिनल्स होते थे, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई इस तरह का
नेटवर्क नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आपस में मिलिट्री यूवर्स में एक ARPANET करके मतलब मिलिट्री में कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया कि हम लोग कहीं भी बैठ के ईमेल के द्वारा आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। उस वक्त इंटरनेट आया और इंटरनेट सही तरीके से सेंसेशन ज़्यादा था। हाँ, तो 99 में जब इंटरनेट आया तो जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे, जो जैसे कि बिल गेट्स साहब ने भी माइक्रोसॉफ्ट में कंप्यूटर बनाए, देखिए उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, घर के लिए कंप्यूटर बनाया था। पर्सनल का नाम ही क्या था, पीसी ही था। अब वो पीसी जो है धीरे धीरे आपको सोचिए आज बिजनेस कंप्यूटिंग की तरह यूज होने लगा। जैसे ही वो बिजनेस कंप्यूटिंग में आया तो उसकी जितनी खामियां थी वो सामने आने लगी, तो फिर वो सिक्योरिटी का इशू बन गया। आज वही काम किसी जो बड़े बड़े पहले से डेक 1090 और जो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन और बनाते थे, वो लोग तो पर्सनल कंप्यूटर नहीं बनाते थे, वो तो बिजनेस मशीन्स ही बनाते थे। तो ये साइबर सिक्योरिटी का सामने आना, इस तरह के कंप्यूटर जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको बनाने की वजह से हुआ। और क्योंकि पर्सनल घर में आप इतने ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं करते हैं जितना आप एक बिजनेस कंप्यूटर में करेंगे। और जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट जो है वो बनाया गया था साइंटिफिक एक्सचेंज के लिए, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं रखी गई। आज भी कोई सिक्योरिटी नहीं है इंटरनेट में। तो इंटरनेट एकदम ओपन प्रोटोकॉल है, तो उसको कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, कोई भी मैन इन द मिडिल हो सकता है। तो जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ हुआ और लोगों को लगा कि ये तो कॉमर्स में भी इसका यूज़ होने लगेगा। पहले तो ईमेल तक ही सीमित था, बाद में जब कमर्शियल हुआ तो फिर चोरी चमारी भी बढ़ी। लोगों को समझ में आया कि ये तो ओपन प्रोटोकॉल है। फिर लोगों ने नए नए इक्विपमेंट बनाए और बनाने की कोशिश की। लेकिन मेरा आज ये मानना है कि साइबर सिक्योरिटी का जो पूरी फील्ड है, वो पूरी फील्ड इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर्स को सिक्योर नहीं बनाया गया। जो अगर कंप्यूटर को सिक्योर बनाया जाता, आज ऑडियंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर्स, कुछ ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो यूएस में बनते हैं जिनको ट्रस्टेड कंप्यूटर कहा जाता है। उसमें किसी तरह का इस तरह का ये वायरस और ये सब नहीं होता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सब जगह वैसे कंप्यूटर्स नहीं भेजे जाते हैं। तो वो कंप्यूटर जो है, जो हम जिनमें आज हम काम करते हैं, वो तो इनसिक्योर हैं। और जो कंप्यूटर ही इनसिक्योर है तो आप जैसे आप इमेजिन करिएगा, आपके घर में जो आप घर में रहते हैं, आपकी जो अगर सीमेंट जो है कमज़ोर हो तो घर तो गिर ही जाएगा, आप कितने भी ताला लगाएं। तो इसी तरह से जो अगर आपका मेन कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो उसकी जान है, जो अगर वही सिक्योर नहीं है, तो आप कितना भी ऊपर से नीचे, कोई कहता है कि मैं भी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लगा लूँगा, कोई कहता है एंटीवायरस यूज़ कर लूँगा, कोई फायरवॉल लगाऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जो आपका बेस है वही कमज़ोर है। और ये चीज़ को अभी तो फ़िलहाल चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मेरा ये पूरा मानना है कि आज यहाँ का या अपने हिंदुस्तान का कोई बच्चा या आगे चल के कोई वर्ल्ड में, आप देखिए घर बनाते हैं, ये समझने वाली बात है, घर बनाते हैं तो आप सिक्योरिटी के लिए कहीं नहीं जाते हैं। आप कहते हैं भाई सामने से जाके कहीं ताला खरीद लाते हैं, ताला लगा देंगे, ख़त्म हुई बात। लेकिन जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो फिर कंप्यूटर का नेटवर्क लगाते हैं, तो आपकी ऐसे कंपनी है तो यहाँ आप बाहर के आदमी को बुला के पूछते हैं कि भाई बताइए कहाँ सिक्योरिटी होगी। तो क्या सिक्योरिटी का मेरा मानना है कि सिक्योरिटी, जब पुलिस में भी मैं पुलिसिंग भी करता था, सिक्योरिटी शुड बी सिंपल, मतलब एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड सिक्योरिटी। बट यहाँ कंप्यूटर सिक्योरिटी जो है, इसका पूरा एक फील्ड बन गई और पूरा, और मेरे ख्याल से टीचर्स वाज राइट एट दैट टाइम जो उन्होंने सिक्योरिटी की प्रैक्टिस बनाई, क्योंकि उसके बाद ही ये सब विप्रो, इन्फोसिस, ये लोग बाद में सब बातें करने लगे सिक्योरिटी की। तो मेरा आज ये मानना है कि ये जब तक ये सिक्योरिटी अपने जो कंप्यूटर्स हैं वो जो हम प्योर सिक्योर नहीं बनाएंगे और कोई इस तरह की चीज़ नहीं बनाएंगे जैसे कि हम घर में बाहर में विंडो के बाहर ताला लगाएं, दरवाजे में ताला लगा दें तो सब कुछ सिक्योर हो गया। आज भी कंप्यूटर में आप पासवर्ड की बात करते हैं, पासवर्ड हैक हो जाते हैं। आप कहते हैं कि नहीं हम वीपीएन की बात करते हैं तो मैन इन द मिडल में वीपीएन भी ब्रेक हो जाते हैं। इनक्रिप्शन का स्टैंडर्ड्स थोड़े कमज़ोर है। तो क्यों नहीं आज आगे चल के ऐसी कोई चीज़ का मैं मानता हूँ कि ये ज़रूर होगा कि आगे चल के कुछ ऐसा होगा कि आप एक टोकन ऐसा लीजिए और उसको कंप्यूटर में लगा दीजिए, वो हमेशा के लिए सिक्योर रहेगा। क्योंकि इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से, क्योंकि हर एक आदमी को डर लगा रहता है कि मेरा कंप्यूटर हैक हो जाएगा, कोई रैंसमवेयर हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। सर, दिस आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IITians कि वो इस पे काम कर सकते हैं कि हमारी इंटरनेट की सुरक्षा में, कि बहुत सारे यंग एक्सपेरेंट है, दे आर
subjectual in nature. As you have given them idea, so we request to all the IITian to work on sir's idea. Thank you. And so, like during the TCS tenure, then you were working in the private field. Then again, how you joined to the government, sir? और TCS में नौकरी करते हुए मैंने जैसे बताया कि मैंने जब इन्होंने गवर्नमेंट ने मैंने विड्रॉ कर लिया था रेजिग्नेशन और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर मैंने चैलेंज किया, तो उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो उस 3 साल के बाद कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जो रेजिग्नेशन विड्रॉ कर लिया गया उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उस वजह से गवर्नमेंट को ये लॉस्ट। तो ये 2005 में हुआ। फिर गवर्नमेंट को लगा नहीं, इसको चैलेंज करना चाहिए, तो उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वहाँ भी दे लॉस्ट। तो उसके बाद मेरे को 1 साल बाद 2006 में दिसंबर के आसपास, मेरे को सितंबर में फिर से नौकरी दी गई, तो मैंने ज्वाइन भी किया। So which was that post? I was joint commissioner vigilance food and drug administration at that time. Food and drug administration. Okay. काफी अच्छी जगह थी वो भी। That's great. So it was in Mumbai? मुंबई। Oh, great, sir. So, sir, from like TCS, then as you said, joint CP position. Sir, from joint CP to CP position, like how you have evolved yourself? नहीं, मैं तो जब ज्वाइन किया तो मैं तो एसपी के रैंक पे ही था। ज्वाइंट कमिश्नर जरूर कहा जाता है, लेकिन रैंक एसपी की है वो। तो उस वक्त मैंने ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा कि भाई मेरे 20 साल पूरे हो गए, तो मेरे को वॉलंटरी रिटायरमेंट मिल जाना चाहिए। मेरे को वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया नहीं है, और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑफिसर हूँ जिसको 4 साल कंपलसरी वेटिंग में रखा गया, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी अदर इक्विपमेंट्स के। फिर मैंने चैलेंज किया कि भाई आप ये तो बताएं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ कि नहीं हूँ। तो उस वक्त फिर बाद में वो एनसीपी के होम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने ठान ही लिया था कि नहीं, पांडे जी को तो ज्वाइन ही नहीं कराना है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा ये तो आपका मेलाफाइड है। हाई कोर्ट बॉम्बे ने मेलाफाइड शब्द कहा कि ये क्या तरीका है, आपको या तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उस हिसाब से हमको नौकरी मिली। लेकिन आप जो सीपी तक का जर्नी बताते हैं, तो उसके बाद नौकरी मिलने के बाद देखिए कोई भी होगा, मैं आज इस चीज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, कोई भी होगा कहेगा अरे 2000 में रिज़ाइन करने के बाद 2012 में पांडे जी वापस आ जाते हैं, और मैं गवर्नमेंट कोर्ट ने कहा था कि सारा पीरियड आपको बताना पड़ेगा कि देखिए 4 साल तो आपने ड्यूटी के हिसाब से नहीं देने की तो आपकी गलती थी, और पहले भी जब मैं वापस ले लिया था रेजिग्नेशन तो आपने ज्वाइन करना आपकी ही गलती थी। तो इस तरीके से लोगों में ये विचार आना है कि ये पांडे जी तो ठीक है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी फिर भी हमको कुछ जो कोर्ट ने कहा था उसके हिसाब से कोई अमेंडमेंट्स, मतलब मेरे को प्रमोशन नहीं दिए गए। फिर मुझे कोर्ट में जाना पड़ा, और उसके बाद कोर्ट के कहने से बड़ी मुश्किल से बमुश्किल मेरे को फिर मेरे प्रमोशंस दिए गए। जब प्रमोशंस हो गए उसके बाद ये कुछ लोग डीजी बनने थे, और मेरी उम्र कम थी और मैं उनसे सीनियर था, तो वो लोग डीजी बनना चाहते, मैं डीजी बन जाता तो शायद उनको वो डीजी न बनते। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने आनन फानन में जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि मेरा सारा पीरियड सही है, उसके बारे में उन्होंने एक जीआर निकाल के वो सारा पीरियड उन्होंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पीरियड काउंट ही नहीं होगा, तो जो काउंट नहीं होगा तो 30 साल की सर्विस नहीं होगी, तो पांडे जी डीजी नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली उन्होंने कर ही भी दिया, 2017 की बात है। फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने फिर यही कहा कि ये मेलाफाइड है, आप अपना ही डिसीजन, और जो कोर्ट से अप्रूव्ड है आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा लाचारी के तौर पर फिर मुझको डीजी बनाना पड़ा। लेकिन अब लाचारी का तौर ये था कि मतलब उन्होंने पहले भी मेरे को एडिशनल डीजी बनाया था, तो मैं अच्छा डिपार्टमेंट है होम गार्ड्स का, मैं वहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से 5 साल था मैं एडिशनल डीजी और डीजी करके, और मुझे उस चीज़ के कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि उसमें भी 46,000 होमगार्ड्स हैं, उनकी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उनकी सैलरी देखिए, जैसे आप देखें तो राजस्थान मध्य प्रदेश में वो रेगुलर सर्वेंट्स हैं, उनको रेगुलर बनाया गया। यहाँ बेचारे रेगुलर नहीं है, जब नौकरी दी जाती है तभी उनको नौकरी मिलती है, नहीं तो उनको पैसे भी नहीं मिलते। वॉलंटरी फोर्स है, उनके लिए भी हमने कोशिश की, गवर्नमेंट ने मदद भी की, ऐसा नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट ने उनकी सैलरी बढ़ाई।
उसके बाद फिर जब डीजी, मैं सीनियर मोस्ट डीजी हो गया, ये सब करने के बाद था ही, फिर भी हमारे जूनियर्स को डीजीपी बनाया गया। उस वक्त जो सरकार थी 2018-19 में, जो बाद में सरकार 2.5 साल बाद गिर गई, तो उन्होंने खूब, मतलब मेरे को कोई फेवर नहीं किया, मेरे को उन्होंने डीजीपी नहीं बनाया। और मैंने फिर उनको लेटर लिखा, मैंने आप सर के लोगों के साथ मीडियम से ये बातें उठाई कि पुलिस में इस तरह की हायरार्की को गिराना ठीक नहीं है। तो शायद कुछ लोगों को समझ में आया और उन्होंने फिर मेरे को डीजीपी बनाया। तो मैं डीजीपी बना, लेकिन ये जर्नी फिर भी उतनी ही दिक्कत रही, क्योंकि डीजीपी में आप देखिए ऐसा है कि डीजीपी को कायम करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कायम करने के लिए जब यूपीएससी में मेरा नाम गया, तो वहाँ पर मेरा अपोजिशन, मुझे तो बहुत दुख है कि उस कमेटी में मेरे बैच के ही लोग थे, मतलब आईपीएस के, और उन लोगों ने मेरा अपोज किया कि नहीं, अरे, और बिल्कुल जो टेक्निकली गलत चीज़ पे अपोज किया गया। तो मेरे को 10.5 महीने के बाद डीजी के पद से हटना पड़ा। और डीजी के पद से हटने का एक कारण ये भी था कि यहाँ पर हाई कोर्ट में कुछ चंद लोगों ने मिल के पीआईएल की थी, और वो पीआईएल सिर्फ पांडे जी को हटाने के लिए की गई थी। और वो शायद इसलिए भी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हताहत हैं कि उनके खिलाफ हमने केसेस किए थे, और उनको लगता है कि ये केसेस मोटिवेटेड थे। बट मोटिवेटेड और नहीं मोटिवेटेड है तो कोर्ट बताएगा, लेकिन जब सामने कंप्लेनेंट है तो हमको तो केस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मिल मिला के केस किया। और मैं आपको, सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि साहब, सारे केसेस तो आज जो मेरे ऊपर भी केसेस है उनके बारे में 2-2 साल से हमारी हियरिंग नहीं हुई, लेकिन संजय पांडे जी को डीजीपी से हटाने के लिए 4 दिन के अंदर 3 बार हियरिंग हुई, और 5वें दिन गवर्नमेंट को यहाँ तक कहा गया कि हम वी विल टेक ए वेरी एडवर्स व्यू। वो यहाँ के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, आज अच्छे होंगे, बट उन्होंने कुछ ऐसी भी बातें की कि आई विल बी इन गिव एंड टेक रिलेशनशिप, जो अगर मैं डीजीपी होऊंगा, वो मुझे बहुत हर्ट किया। कि मैंने, आप जनता से पूछिए, ऑडियंस जाने, मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया, लेकिन एक हाई कोर्ट इस तरह से मेरे बारे में बोले तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। और आज उसके बारे में यहाँ के कुछ लोगों ने अपोज भी किया कि जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी लिखा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं संजय पांडे के बारे में, लेकिन उन्होंने बोला। उसके बाद गवर्नमेंट ने मेरे को हटा दिया। तो ये मेरी जर्नी एज ए डीजीपी की रही। सर, आपके इतने लॉन्ग ईयर्स ऑफ 36 साल में सर कोई एलिगेशन नहीं हुआ? जब तक के आप सर्विस में थे कोई एलिगेशन नहीं हो सर? जैसे ही आपने रिटायरमेंट किया तो एलिगेशन सामने आए और वो अभी तक साबित नहीं हुए। तो यू आर ट्रस्टेड बाय द ऑडियंस एंड बाय द पब्लिक, वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर इन द फील्ड। आपने जो दिया लोगों को, दैट इज़ ऑनेस्टी। थैंक यू सो मच फॉर दैट थिंग सर। सो सर, 36 ईयर्स आपने लॉन्ग स्पैन ऑफ करियर में सर बहुत अप्स एंड डाउन देखे। सो सर, ये जो एलिगेशंस लगाए गए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एम्प्लॉय को फ़ोन टैपिंग किया, देन एज यू नो लाइक होम मिनिस्टर का एक्सटॉर्शन का केसेस जो आपने उस टाइम पे देखा था, और फिर हम जब आप लाइक कि रिटायर किए तो वो सब केसेस अब आ रहे हैं सर। तो सर ये कैसे होता है सर? आपने जब बात की, मतलब कि ठीक है, 36 साल में मैंने कोई किसी करप्शन का मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ, और जान होने के बाद ये कैसे हुआ। अब देखिए, ये बात बहुत बड़ी है एक्चुअली। हिंदुस्तान में जैसे आज मैं बात कर रहा था, ये बहुत निचले सिरे की बात है। आपने कुछ गलती की है, उसके लिए आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस हो जाए और आप उसके लिए उसका बदला उठाने लगे। जब मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग रोड पे ऐसे क्रिकेट खेलते थे, तो उस बच्चों में कुछ गुंडा टाइप भी थे, जिनको मतलब हमें अभी भी याद है कि मतलब गलती से अगर हमारे बैट से बॉल उसके सर पे लग जाए तो बिना मारे छोड़ता नहीं था। और हमारे घर वालों से मैं अपने माता जी से कहता, देखो वो बेचारे ने हमको उसने पीट दिया, तो उनका यही कहना था कि अरे वो गुंडा है, तुम क्यों उनके साथ खेलने जाते हो। तो शायद यही एक बड़ी गलती थी कि मैं पुलिस में आया और मैंने कुछ केसेस किए, और जिस तरह से गेंद को बल्ले से मारने का ही तरीका होता है, तुमको गलती से लग गया तो मैं उसका जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन आज उसके लिए जिम्मेदार मेरे को ये ठहराया जाता है कि आपने हमारे ही
कुछ लोगों के खिलाफ केसेस किए जिसमें कि पुलिस वाले भी इन्वॉल्व है और इसमें कुछ पॉलिटिकली इंक्लाइंड लोग भी हैं। तो अब उसमें मेरी क्या गलती है? आप जाके कोर्ट में समझिए और कोर्ट में आप देखिए, ठीक है ये चीज़ मेरे ऊपर भी वो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है आपके ऊपर कोर्ट में के आपके ऊपर केस किए, आप जाके कोर्ट में समझिए, तो मैं तो समझ रहा हूँ। लेकिन बात यही है कि एक जगह कंप्लेंट होता है, कंप्लेंट करता है, और दूसरी जगह सरकार ही आपकी कंप्लेंट करती है। मेरे खिलाफ जो केसेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हो का जो आपने बात किया, अभी वो कोर्ट में है, सब जुडिस होने की वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने फ़ोन्स दूसरे के फ़ोन नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं, अपने फ़ोन अपने प्रेमाइसेस में मेरे आने के पहले 97 से रिकॉर्ड करता है। और मेरे ख्याल से आज सारे जो भी सुन रहे हैं, सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में फ़ोन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये कोई ऑफेंस है, शायद हिंदुस्तान इसको ऑफेंस ठहरा सकेगा, तो हम भी कोर्ट के सामने हैं और यही दरियाफ्त है कि ये ऐसा कोई ऑफेंस है। लेकिन लॉ में अब तक के सर ऐसे रिकॉर्डिंग इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफिसर, बट स्टिल इट इज इनटू द बेंच ऑफ जुडिशियरी, सो वी कैन नॉट go much in that. So but we believe like honesty will prevail. I also think so. I have full faith in the judiciary. और मेरे ख्याल से मैं आज जो यहाँ के सामने बैठा हूँ, आप 36 साल गिना सके, वो भी जुडिशरी की वजह से ही गिना सके, बिकॉज 2005 में भी मेरे फेवर में थे, 2012 में भी मेरे फेवर थे, 2017 में भी मेरे फेवर थे, तो आज आगे चल के मेरे ख्याल से 24-25 में भी मेरे फेवर में ही रहेंगे। और फेवर इसलिए नहीं कि कोई गलत काम का वो फेवर कर रहे हैं, जो जायज़ है, जो नैतिक है, जो नीतिवान है, उसके बारे में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की जुडिशरी अभी भी सक्षम है डिसाइड करने के लिए। सर लाइक फ्रॉम पुलिसिंग टू पॉलिटिक्स, व्हाट ड्राइव्स यू सर? मैंने देखा है कि ये मतलब थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, जब मैं आईआईटी में था तो मेरे एक अच्छे मित्र हैं और मेरे से सीनियर हैं, उन्होंने एक बुच करके साहब होते थे, एमएन बुच, बहुत बड़े ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर्स थे, और उनकी वाइफ भी आईएएस। जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने ये बताया। तो बुच साहब ने एक लेक्चर दिया था, उसमें कहा था कि भाई हर एक आदमी का ध्येय क्या होता है। ध्येय होता है, मैं सारे ऑडियंस को बताना चाहूँगा, हर एक अच्छा आदमी चाहता है कि वो जिस समाज में रहता है, जिस जगह रहता है, उसको अपलिफ्ट करे। मतलब जो आज की जो है, आज मैं जो अगर मैनेजर हूँ तो कल मैं डायरेक्टर हूँ, तो आप जो अगर इसको सोसाइटी को अपलिफ्ट करना एक सही माने हैं, और इसी को हर एक आदमी का ध्येय यही होना चाहिए। अब कुछ लोग शायद नहीं होंगे, डिरेंज्ड होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर 99% लोग समाज को अपलिफ्ट करने के बारे में सहमत हैं, चाहे भले वो कर पाए नहीं कर। तो उन्होंने कहा जो करिए इसको आप एक बॉल माने और एक रॉड माने, जैसे लीवर है, तो बॉल को जो अगर उठाना पड़े तो आप लीवर में कहाँ पर अपने आप को पोजीशन करेंगे, जितना आप दूर होंगे उतना जल्दी बॉल उठेगा। तो उन्होंने फिर संज्ञा दी कि सबसे नीचे जो है लेबरर्स हैं, बेचारे मेहनत करते हैं, अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन सोसाइटल चेंज करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके ऊपर आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, जो कि डिज़ाइन करते हैं, काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी डिज़ाइन से आप देखें तो रिलायंस वर्ल्ड बना, बड़े बड़े मॉल्स बने, अच्छे कोस्टल रोड्स बन रही हैं। तो ये, लेकिन वो भी उस लीवर में थोड़ा ही ऊपर हैं, बहुत ऊपर नहीं। उसके आप ऊपर और जाएँ तो हमारे टीचर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, जो अगर हमने नहीं आज सिखाया होता तो शायद किसी और, या तो कुछ लोग पैदाइशी सीख जाए, बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हमारे टीचर्स हैं, आज भी मैं अपने टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने हमको सिखाई, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सके। तो वो थोड़े और ऊपर आते हैं, मतलब जो अगर अच्छा टीचर हो तो आपको सोसाइटी को जल्दी अपलिफ्ट हो सकता है उस रॉड में ऊपर। उससे भी ऊपर गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटर्स आते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज जो बनाती है उसको इम्प्लीमेंट, तो ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं। शायद टीचर्स ऊपर भी आए, लेकिन मैं उनको करीब करीब सेम जगह मानता हूँ। लेकिन उसके और ऊपर गवर्नमेंट आता है कि जो उनका जो है उस रॉड में वो और ऊपर है। तो गवर्नमेंट चाहेगा, जैसे मैं अटल बिहारी जी के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोग कानपुर जा रहे थे और उस वक्त मैं तो पीछे ही था, लेकिन बात हो रही थी कि रोड क्यों नहीं अच्छी हो सकती हैं। वो लखनऊ कानपुर जो है 70 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन गड़बड़ थी। और यही नहीं, क्यों नहीं हमारे देश में एक कनेक्टिविटी हो सकती है रोड की।
वो उनका विचार था। आज कोई भी उसको इम्प्लीमेंट करे, लेकिन उनका विचार था और वो आज हो सका। तो वो गवर्नमेंट में थे, वो चाहे तो कोस्टल रोड बनती है, वो चाहे तो सी लिंक बनती है। हम चाहेंगे तो नहीं बन सकती ना, हम लेबर, तो हमको अगर इंजीनियर भी है तो क्या आपको डिजाइन का नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट और भी ऊपर है, तो वो पॉलिटिशियंस है। और उसके भी ऊपर पूरी चीज बता था, उसके ऊपर पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। जैसे गांधी जी थे, उन्होंने सिर्फ एक नॉन वायलेंस से पूरे हिंदुस्तान को इंडिपेंडेंट किया। लोग कुछ भी कहें, लेकिन उनका नॉन वायलेंस आज पूरे विश्व में माना जाता है। और वो भी सर 6% लिटरेसी थी उस टाइम। वक्त सोचिए, तो उन्होंने तो पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ फिलोसोफर्स कम द लास्ट, दे कैन। तो हम सोचिए, आप अपने आप को इस रॉड में कहाँ लगाना चाहेंगे? इसमें आप अग्रसर रहिए। हम इंजीनियर थे, इंजीनियर से ऊपर आके इम्प्लीमेंटर हो गए। अब इम्प्लीमेंटर के बाद तो गवर्नमेंट ही है। फिलोसोफर के लिए तो साहब बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी इस रॉड में ऊपर ही बढ़ना चाहिए, नीचे नहीं उतरना चाहिए। So sir, like you joined the Congress recently and very congratulations for that, and we think like you will do flourish in your lifestyle, and even you will give a new avenues to all the masses. So sir, जब एक आम आदमी सेकंड क्लास में ट्रैवल करता है तो उसकी दो ही समस्या होती है, एक रोज़गार और दूसरी शिक्षा। अगर ये दोनों हो तो वो सेकंड क्लास में ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि एक तो पैसा और दूसरा कि उसको ज्ञान। तो इसके लिए सर, यू बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिशियन, लाइक आप क्या करोगे सर? मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि हमारे देश में पहले से लेके 10वीं क्लास तक की एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन है, उसका एक स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जो अगर वो नहीं है तो उसके बाद मैं एग्जांपल यही दूंगा कि मतलब जो अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं हैं, हम ऊपर जाके कोई भी डॉक्टर और इंजीनियर के फल लगा लें, पीएचडी करा लें, लेकिन वो पेड़ गिर जाएगा। तो आज फोकस जो अगर मुझे मिलता है कभी पॉलिटिक्स में, तो मैं तो चाहूँगा जो अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं। अब आप जैसे बड़े बड़े लोगों की बात कर लीजिए, जिन्होंने एप्पल बनाया, जिन्होंने, हम उन्हीं का एक संज्ञाएं दे सकते हैं जो कि लोग देखते हैं। तो वो तो शायद इंजीनियरिंग उन्होंने की भी नहीं, बिल गेट्स ने भी पूरी डिग्री की नहीं, लेकिन उनका बेसिक एजुकेशन इस लेवल का था कि वो सोच सकते थे, समझ सकते थे। हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ के ये सब बड़े बड़े इजाद किए और काम किए। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सरकार आए, जो अगर मुझे मौका मिला तो मेरा तो सिंगल पॉइंट एजेंडा यही रहेगा कि एजुकेशन, और वो भी इंजीनियरिंग एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन और ये सब का, ये तो बात की बात है। पहले आप जड़ मजबूत करिए और बेसिक फाउंडेशन। और पूरे हिंदुस्तान में ये जो करिकुलम है पहले से लेके 10वीं तक का, 10वीं में भी आईसीएसई बोर्ड है, यूपी में भी, मैं यूपी जानता हूँ, यूपी बोर्ड है। जो भी है, 10वीं का एग्ज़ाम तो स्टैंडर्डाइज होता है, 12वीं का एग्ज़ाम भी काफ़ी कुछ स्टैंडर्डाइज है। मुझे तो लगता है कि इसी तरीके से 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें में क्या सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, क्या एग्ज़ाम्स किए जा रहे हैं, ये सब भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। तभी हमारे देश में और जो एक आगे प्रगति होगी। और यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज मेरे हिसाब से ऐसे नहीं मिलनी चाहिए कि आपको, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक जगह मैं पढ़ाता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लेता था, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी में पूछा कि भाई आप कंप्यूटर साइंस कैसे आए? तो उन्होंने कहा भाई हमारा हमारे पास बेसिक क्या मार्क्स हैं? तो कहे 55%, 60%, बट हाँ पैसा लगता है, पैसा दीजिए आपको इंजीनियरिंग का डिग्री मिलेगा। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। आप जो अगर कोई प्रगतिशील देश देखें, आज आप चाइना की बात करें, आप साउथ कोरिया की बात करें, तो आप वहाँ पर डिग्री नहीं ले सकते अनलेस अनटिल आपका एक बेसिक लेवल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो मानता हूँ कि हिंदुस्तान के आने वाले 10 साल में जो अगर कुछ भी हमारा इनिशिएटिव है तो बेसिक एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कराने का, स्ट्रेंथन करने का और करिकुलम को स्टैंडर्डाइज करने का। ऐसा नहीं कि कोई अपने हिसाब से एनसीईआरटी किताब बना रहा है, कोई किसी किताब बना रहा है। ये सब स्टैंडर्ड होना चाहिए। हमारे देश का, वर्ल्ड का क्या नीड है उसको देखते हुए ये आगे बढ़ना चाहिए। और आगे की डिग्रियां जो हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, क्योंकि वो आदमी जो है, जो इंजीनियर हो गया, वो आदमी आज छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहता है। ये तो विडम्बना है कि हमारे यहाँ पुलिस में कांस्टेबल्स और इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। वो क्या रहा है कि हमारे वो ऐसे इंजीनियर्स हैं ही नहीं कि इनको आप इंजीनियर मान सकें।
उनके पास वो स्किल सेट्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को हमको डिग्रियाँ देना, मैं नहीं कहता कि उनको हार्म होगा, मैं कहता हूँ उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो जब कोई काम करेंगे, जो भले ही डॉक्टर इंजीनियर करना हो, लेकिन उसमें उनको गर्व तो फील होगा कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। इट्स अ स्किल्ड एजुकेशन। तो फ्रस्ट्रेशन जो है, जिस कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, एकदम स्किल्ड एजुकेशन देना, वोकेशनल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग करना, हर एक आदमी को इंजीनियर बना के, हर एक आदमी को डॉक्टर बना के, पीएचडी बना के आप देश के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। और सर, जैसे हमने, जो एक आम आदमी है उसको रोज़गार से बहुत बड़ी समस्या है सर। मेजर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन आवर कंट्री। तो सर, यू बीइंग अ वेरी ट्रू ऑन योर फ्रंट, सो सर आप क्या करोगे सर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सर? देखिए, वही मैंने कहा कि जो अगर आप लोगों की एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करेंगे और लोगों की एजुकेशन का एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं। अब जो डॉक्टर है वो कहता है मैं डॉक्टर का ही काम करूंगा, इंजीनियर, लेकिन वो डॉक्टरी सही तरीके से सीखा है कि नहीं सीखा है, आई डू नॉट नो। पढ़ाने वाले कौन थे, टीचर्स कौन थे, तो ये भी बहुत। तो मेरा तो ये मानना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो कमर्सरेट होना चाहिए आपके स्किल लेवल से, बजाय कि एजुकेशन लेवल से। तो जो अगर स्किल को हम, आज मैं सारे जो भी कॉर्पोरेट्स भी सुन रहे होंगे, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बजाय डिग्री देखने के आप स्किल देखिए, और स्किल के लेवल पे आदमी के, आज बहुत से कोडर्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं है, बट वो बहुत बड़े बड़े प्रोग्रामिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कोड लिखते हैं। बहुत लोगों का एग्जांपल आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है उनके लिए बीटेक डिग्री की? ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। मैं कई बार वो बीटेक से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मैं अब ये डॉक्टरी के बारे में एक स्पेशल प्रोफेशन है, अब उसके बारे में तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि रोज़मर्रा के बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें, जैसे अकाउंटिंग है, जिस तरीके से, ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, उतना आदमी सीख सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को जो अगर हम आगे बढ़ाएं और हम डिग्री के ऊपर नहीं जाएं तो वो बहुत अच्छा होगा। And sir, as you have discussed about medical field, so medical is very expensive for a normal person. If he goes, even if he is not having a symptom, okay, like particular expert of the medical will give him the prescription and he has to test. वो सब कहानी वहीं से आती है। देखिए, आपकी बेसिक वैल्यू सिस्टम क्या है, और वैल्यू सिस्टम कब होता है? वैल्यू सिस्टम कब आपके अंदर इंग्रेड किया जाता है? घर में, जब आपके बच्चे को बैठा के आप कुछ भी करें, आप नमाज पढ़ाएं या उसको कोई रिलीजियस काम कराएं, मैं वो एक बेंट ऑफ माइंड जनरेट किया जाता है, किताबें पढ़ाएं, जो भी है। जो अगर वही नहीं है तो फिर आगे चल के लूट घसोट का आप क्या, मतलब आपके पास बेसिक वैल्यू सिस्टम आपका ख़राब है। तो ऐसे में फिर आप किसी एक आदमी को नहीं, ये चीज़ इंजीनियर्स में भी लागू होती है। आर्किटेक्ट्स को आप बुला लीजिए, दुनिया भर की बातें बताएंगे। मैं किसी एक पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का नहीं कह रहा हूँ, किसी प्रोफेशन को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, बट मेरा ये कहना है कि भाई जो अगर आप समझिए, सामने एक आदमी है, उसको जैसे अभी कोविड का समय था, दुनिया भर के टेस्ट कराए गए, हमारे को भी हुआ था, मेरी माताजी को भी हुआ था, खुद भगवान की दया से मेरे पास एक कोई जान पहचानी डॉक्टर थे, हमने सिर्फ पैरासीटामोल खाया और कहीं नहीं गए और हम ठीक हो गए। तो बहुत से लोगों ने 50 टेस्ट करा लिए। तो ये चीज़ डॉक्टरों ने जो बताई, मैं तो ये कहूँगा कि भाई उनकी बेसिक एजुकेशन में फॉल्ट है। जो डिग्री मिली वो तो ठीक है, लेकिन जुगर वो उस लायकी के थे क्या? और सिर्फ पैसा दे के अब किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वो गलत है। और उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड, इंजीनियर्स के लिए भी एक सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम, आप कहते हैं यहाँ जेई है, अब आजकल नीट है, वो ठीक है, लेकिन और भी बहुत से कॉलेजेस हैं यहाँ पर ये सब नहीं लागू होता। सर, विद यू ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू योर करियर लाइन, सर आपके हिसाब से कि लाइक क्राइम क्यों होता है सर, एंड व्हाट इज़ क्राइम सर? मैं आपको इसको एक उदाहरण की तरफ से बताना चाहूँगा। एक धारावी केस में एक 60 फीट रोड है, वहाँ पर एक आदमी था जो कई बार चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया। उसका काम, नज़रिया ये था कि कहीं भी दुकान में जाके रात में गरफोड़ी करता था और वो रहता था। तो मेरे सामने पेश हुआ, तो मैंने उससे पूछा, मैं डीसीपी था,
कि भाई ये क्या बात है कि अब तुमको कई बार बंद किया गया और तुम हर बार चोरी करते हो और फिर बंद हो जाते हो, फिर छूटते हो, फिर चोरी करते हो। तो इस वाक्य को याद करके मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज उसने कहा कि सर आप पुलिस की हैसियत से मेरे पूछ रहे हैं, आप मेरे जाके घर में देखिए। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? कहना मेरा बहुत छोटा सा बच्चा है, मेरी एक माँ है, मेरे एक वाइफ है, उनको मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है खाना पीना देने का और खिलाने का, तो मैं क्या करूं? मेरे को कोई किसी तरीके से मैं इनको आगे बढ़ा नहीं सकता। अगर मैं खाना नहीं दूंगा, मेरा बच्चा अभी 6 महीने का है, शायद चल गुजरेगा, तो इसलिए मुझे करना पड़ता है। तो मैंने पूछा तुम्हारी एजुकेशन का क्या? कहते साहब कभी किसी ने पढ़ाया ही नहीं, कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि मैंने लोगों से कहा कि भाई इस आदमी को आप मत परेशान करें। तो जो आपने पूछा कि वो क्रिमिनल है क्या, अरे वो तो बेचारा नीड बेस्ड क्रिमिनल है। और मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान में 99% नीड बेस्ड क्रिमिनल है, जिनको कि खाने का दोपहर मुहैया नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग क्रिमिनलिटी कर रहे हैं। और ये क्रिमिनलिटी कैसे हुई? आज हमारे पास बड़े बड़े रुइया कॉलेज, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, मॉडर्न कॉलेजेस हैं, वहाँ विचारों की एंट्री नहीं है। राइट टू एजुकेशन बनाया गया, लेकिन बच्चों को अभी भी, गरीब लोगों को सब जगह जाके पढ़ने का, और पढ़ें भी तो कैसे पढ़ें? रात को घर में खाना कौन देगा? तो फिर बच्चों को आज कहते हैं कि अरे लोग इतने लोग पैदा कर रहे हैं, अरे उनको हैंड्स पैदा कर रहे हैं, वो बेचारा लेबरर है, उसके साथ 4 बच्चे होंगे तो बेचारा 4 आदमी मिल के कमाएंगे। तो आज हमारी इकोनॉमी चाहे कितना भी आप 4 ट्रिलियन का है, लेकिन गरीबी जो है वो एक सबसे बड़ा कारण है आज क्रिमिनलिटी का। जो अगर पैसे होते तो शायद ऐसा ना करता, लेकिन कुछ कहेंगे लोगों के पास बहुत पैसे हैं फिर भी वो ऐसा करते हैं, तो वो उस 1% में आते हैं जिनका कि मेंटल प्रॉब्लम है, जिनको कि कोई ना कोई क्राइम के सिवाय उनके ज़िंदगी पूरी नहीं होती। जैसे लोग कहते हैं ना, रात में बैठ के जब तक हम 2 पैग नहीं पी लेते हैं तब तक हम नहीं ठीक रहते। तो वो अलग माइंड है। और इस तरह से सोसाइटी में इस तरीके के डिस्टॉर्टेड माइंड्स हैं, बट दैट परसेंटेज वेरी लेस। जो ज़्यादातर आप हिंदुस्तान का जो आप क्राइम देख रहे हैं, आप अब देखिए साइबर क्राइम की भी बात अब कर लें, अब वो भी तो पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? कोई कहता है मैं झुमरी तिलिया में बैठा हुआ हूँ, कोई एक छोटे से हटमेंट में बैठे हुए हैं। जो पकड़े जाते हैं, आप जरा उनकी शक्लें देखिए, आपको क्या लगता है कि वो बहुत बड़े बड़े बहुत पैसा कमाए हुए हैं? नहीं, उनके पास नहीं है। अब जैसे लॉटरी वाले भी पकड़े गए, पहले क्या करते थे, मेरे ख्याल से कुछ, मेरे हिसाब से तो कहीं गन्ने का जूस बेचते थे, उससे वो आगे बढ़े। तो जो अगर हम अपने देश में एक बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स कर दें कि भाई हर एक आदमी को इतना पैसा और इतना खाना पीना रहेगा, तो मेरे ख्याल से नीड बेस्ड क्राइम जो है ख़त्म हो जाएगा। वो 1% को तो हम नहीं कम कर सकते, बिकॉज वो तो फिर उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है। सर, एज यू मेंशन हियर, सो इन 2013 हमारे यूपीएससी में ऐड किया गया एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड एज अ सब्जेक्ट, ताकि एक मोरल कॉन्टेक्स्ट जाए सभी ऑफिसर्स के लिए। सो सर, आपको लगता है कि मेडिकल एथिक्स भी ऐड करना चाहिए नीट एग्ज़ाम में? अब ये तो जो डिज़ाइन करते हैं उनको करना चाहिए, बट मुझे तो ये मानना है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो यूपीएससी में ऐड किया गया है, अच्छी चीज़ है। और एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए अब तो बहुत साइंटिफिक तरीके हैं। और डॉक्टर कौन बन सकता है उसके मन में और उसके हिसाब में, तो ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट हर जगह होने चाहिए। यूपीएससी में भी किया गया, बहुत अच्छी बात है। हर इंजीनियर्स के साथ भी ये होना चाहिए। बहुत से इंजीनियरिंग में पैसे पहुंच गए जो कि इंजीनियर से कोई नहीं देना नहीं, उनके नंबर आ गए, मार्क्स आ गए, बेचारे इंजीनियरिंग में फंस गए। तो ये सब चीज़ों में मेरे ख्याल से एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होने ज़रूर है। लेकिन हमारे देश में, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि एडमिशन को ही स्टैंडर्डाइज अब नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब ये सब चीज़ें तो बात की बात है। मतलब एडमिशन अक्रॉस कोई भी आदमी को, मैं तो कहता हूँ BA BCom की भी डिग्री देना गलत है, अनलेस अंटिल देयर इज एन एप्टीट्यूड, अनलेस अंटिल देयर इज अ लेवल। आज तो आप जहाँ चाहें BA BCom LLB ये सब डिग्रियाँ मिल जाती हैं आपको। तो ये हमारे देश में इसीलिए फ्रस्ट्रेशन है यूथ हमारा। और हम जहाँ एडवर्टाइज करते हैं, हम कहते हैं हमको बीटेक चाहिए, BE चाहिए, जबकि और ऐसा बहुत से ऐसे हैं जो कि जिनको ये सब
करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो दे आर वेरी वेरी प्रोफिशिएंट। तो ऐसे लोगों को हम जो अगर इफ़ वी ओनली एडवर्टाइज स्किल सेट्स, तो ये डिग्री मांगना भी कम हो जाएगा और लोगों का एम्प्लॉयमेंट के बारे में फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगा। और ये सब चीज़ें वहीं से आती हैं। जो अगर हमारी बेसिक एजुकेशन अच्छी है तो हमारा एप्टीट्यूड भी अच्छा होगा, जो अगर है मतलब कई बार इनबॉर्न भी होता है, तो लेकिन ज़्यादातर आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। And nowadays, sir, as you mentioned, we can come to the conclusion as far as education. Like education is into the bubble zone, sir. जैसे आपने बताया, it is into bubble zone. What is required is a skill. If he's a skilled, he should be employed. But we are like bubbling it. Okay, we are making it so-called cool culture to get the good degrees. But degrees will not get you the job if you are unable to give the answers to your concern HR. If you are getting to the high, they just ask us simple as you are very experienced, so like they describe about yourself. Like if after 15 years of education, if they are unable to make it, so that is a waste of the money as well as the skills. मैं कह रहा हूँ IT में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, कहीं भी किसी भी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, लॉजिस्टिक्स की जॉब है, ह्यूमन रिसोर्स की जॉब है, इसके लिए दुनिया भर के MBA करने की कोई आवश्यकता है आपको लगता है? इसी तरह से प्रोग्रामर्स की जॉब है, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई डिग्री नहीं है, वो ऐसा प्रोग्रामिंग करते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। अब डॉक्टर्स के बारे में थोड़ी स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, बट मैं तो ये मानता हूँ कि उनका सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बिकॉज एक गलत डॉक्टर जो अगर जैसे अभी नीट के बारे में जो इतना बड़ा हुआ था, मैंने भाई कई बार लिखा, मैंने कहा एक भी डॉक्टर जो अगर गलत उसमें रिक्रूट हुआ है तो आप सोचिए कितने लोगों के ऊपर हार्म होगा। तो इसलिए सारा एग्ज़ाम मेरा तो मानना था कैंसिल होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और शायद कुछ ऐसे मुन्ना भाई पहुंच जाएंगे जिनके बारे में समाज को बाद में दिक्कत होगी। So sir, you being now, we believe you are a statesman. आपके opposition में जो भी है, with all due respects in regards to him, but you are very strong contender. Sir, आपके agendas क्या होंगे और after the election, what you will give to your constituency? देखिए मेरा एजेंडा मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, जहाँ अभी जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड नहीं हुई है, मैं तो लेकिन कहीं भी मैं जाऊँगा तो आज अगर मुंबई से ही लड़ना चाहूँगा, कहीं से भी, मेरा बेसिक एजेंडा साहब सैनिटेशन का होगा। बेसिक मतलब आज अगर मुंबई में जो बीमारियां हैं, जो सब तरह की अड़चन है, वो आज सैनिटेशन की वजह से। तो सैनिटेशन हमारा बेसिक मुद्दा होगा और उसी से जुड़ा हुआ, देखिए सैनिटेशन जो अगर ठीक हो तो बीमारियां कम हो जाती हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है टू इराडिकेट बाय 2025, बट इफ वी आर ट्रैवलिंग, commuters are traveling, if we come into the contact of the spit, which is a person who have already suffered, as you mentioned sir, it is a communicable disease, it will spread. The very best agenda, that is sanitization. So do you think like we need to make a good laws for like for eradicating pan gutka masalas? देखिए यही सब है ना, पान गुटखा मसाला से कैंसर होता है, लोगों को पता है। गवर्नमेंट ने तो बैन भी किया हुआ है, मतलब लेकिन फिर भी लोग यूज़ करते हैं। अब बार बार ये रिपीटेटिव होता है, लेकिन यही है कि बेसिक वैल्यूज़ नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, लोगों को पता नहीं है खाना हार्मफुल है। कितना भी आप सिगरेट के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट लगाएं कि इट इज़ हार्मफुल, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो मैं अपने इस क्षेत्र में जहाँ भी रहा, वो एक सैनिटेशन का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मुद्दा है हैबिटेशन का। हैबिटेशन मतलब घर रहे, घर। अब घर बनाने का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए साहब, क्योंकि घर का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि आप जो नीचे स्लम है तो आपने ऊपर स्लम बना दिया। आज आप जाके देखिए कई जगह जो कॉलोनीज बनी है स्लम एरियाज में, वो जो नीचे छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। अब आप एक आदमी के बारे में आपको एक लिमिट, एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि भाई इतने स्क्वायर फुट के लिए एक आदमी चाहिए, तो अब आप उसको एकदम घुचकुले की तरह आप जो तो हैबिटेशन का आवाज़ धारावी में बहुत बड़ा घमासान चल रहा है कि हमको जो रिहेबिलिटेशन में हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो सिंपल कहना है कि आदमी को उसके रहने की जगह का एक स्टैंडर्ड जो है गवर्नमेंट को डिफाइन करना चाहिए। इससे बड़ा इससे छोटा जो है, बड़ा तो चलिए ठीक है, लेकिन इससे छोटा सही नहीं होगा। आज मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप इससे छोटा कमरा, इससे छोटा बाथरूम, इससे छोटा बेडरूम नहीं बना सकते। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और हैबिटेशन का दूसरा मुद्दा ये भी है कि एक लिमिट के बाद
कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। आप आज हमारे महाराष्ट्र को ही देखिए, आप थोड़ी दूर जाइए, 25 किलोमीटर दूर के बाद आपको पूरा ग्रीन एरिया दिखता है, खूबसूरत है। पाली वाली में कहीं पहले जाता था। ये सबर्ब्स क्यों नहीं डेवलप किए जा सकते हैं? और वहाँ पे आप डेवलपमेंट करिए। आप यहाँ पे जो मेन रोड के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, और उसमें बिल्डिंगें ही खड़ी करने के बाद ना पार्किंग है, ना आदमियों को मूव करने की जगह है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये दूसरा मुद्दा जो मैंने आपको बताया। सो सर, जो आपकी हैबिटेशन पॉलिसी है, उससे हमारी कंट्री की जो सिटी है उसको प्लान होने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि सिटी विल बी प्लान, जिसको जिधर दिल करा उसने वो नहीं बना पाएगा इफ गवर्नमेंट मेक सच पॉलिसीज। वही है, देखिए कल भी मैं एक वॉकिंग प्रोजेक्ट के साथ बात कर रहा था, तो कह रहे हैं वॉकिंग प्रोजेक्ट में जीब्रा लाइन होना चाहिए, पेवमेंट होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर सिटीज़ में पहले घर आए, घर बने, उसके बाद रोड बनी। तो ये प्लानिंग नहीं है। और जहाँ बन चुका वहाँ तो बन चुका, लेकिन अब यहाँ आप बाहर जाइए, आप बाहर जाके आप बम्बई को और बड़ा बनाइए, और लोग बाहर रहेंगे तो इसीलिए ट्रेन पे के ऊपर भी ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि जुगर सारे बिजनेस जो है बीकेसी में ही आएंगे, सारे बिजनेस साउथ बॉम्बे में ही रहेंगे, तो लोगों की मारामारी बढ़ेगी। बेचारे नाइलाज होकर उनको वहाँ जाना पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसी जगहों में ऑफिस, मैं तो यह मानना है, लोग शायद मेरे को माने ना, तो मुझे तो ये कहना है कि भाई एक लिमिट के बाद एक डेंसिटी डिफाइन करिए, एक स्टैंडर्ड डिफाइन करिए। इतने ऑफिस होने के बाद दूसरा ऑफिस यहाँ नहीं बनेगा, इतने आदमी होने के बाद यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, इतने आदमी होने के बाद, इतनी कारें होने के बाद आपको दूसरी कार नहीं लेनी पड़ेगी। तो वो ये हैबिटेशन में ये सब चीज़ें हैं। हम गाड़ी चला सकते हैं क्या? मैं आज हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, कल भी ट्रेन से गया था, और ट्रेन ना होती तो कल के पानी में मैं लौट के नहीं आ सकता था। तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें इस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं कि भाई हम एक लिमिट लगाएं। और आज की तारीख में मुंबई में लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी नो कंस्ट्रक्शन जोन्स, देयर शुड बी नो मोटरेबल जोन्स, एंड देयर शुड नॉट बी कि भाई आप इसके ऊपर एक फैमिली में 5-5 गाड़ियाँ, और गाड़ियाँ भी मिनी बस की तरह, मिनी बस की तरह। अरे आदमी हो 2 और मिनी बस लेके घूम रहे हो, जिस तुम्हारे को सहूलियत है, लेकिन दूसरों को तो आपने परेशान किया ना। रोड तो उतनी है, कितना भी कोस्टल बना लें, कितना भी कर लें, लेकिन मुंबई में 2 ही रोड हुआ करती थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। आप कितना एलिवेट कर लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आप नैसर्गिक जो चीज़ है उसके अलावा नहीं जा सकते। तो इसलिए बॉम्बे एक लिमिट पे पहुंच चुका है। इस बॉम्बे में हैबिटेशन के बारे में बहुत गहरे तौर से सोच के बाहर डेवलपमेंट होना चाहिए। और जितना है हमारे एरिया में जो अगर मैं बना तो मैं इसके ऊपर जरूर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करूँगा। So, sir, one is sanitation, another is habitation policy, and another major, if any. मेरा इससे जुड़ा हुआ है प्रश्न है एजुकेशन का। सैनिटेशन, हैबिटेशन, एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है, जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, सैनिटेशन और हैबिटेशन। क्योंकि जो अगर एजुकेटेड नहीं है कि हम अपने घर का गंदा पानी अपने बाहर सामने फेंक देंगे, तो ये एजुकेशन का सवाल है। तो इसी तरीके से जो अगर हमको रहने की जगह नहीं है, हम 2x2 के घर में, अब आज जो धारावी में आप जाके देखिए 10x10 में पोंगल चलते हैं, जिसमें 10-10 फैमिलियाँ रहती हैं, एक लॉफ्ट के ऊपर दूसरी लॉफ्ट। मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बजाय इसके कि हम रिहेबिलिटेशन में भी हम जो छोटा मोटा झगड़ा कर रहे हैं कि 140, 240, 350, 400, ये सब नहीं है। आदमी को आदमी की तरह रहने का, आदमी को आदमी की तरह जीने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और वो अधिकार स्टेट देगी और स्टेट को देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो एजुकेशन के बिना ये दोनों चीज़ें संभव नहीं है, और वो भी प्राइमरी एजुकेशन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ हमारे एरिया में आके आप डिग्री कॉलेज बना दीजिए। हमारे एरिया में एक एजुकेशन का एक सिस्टम हो सकता है, क्योंकि नॉन वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो सकती है। वोकेशनल ट्रेनिंग कराइए, लोगों को समझाइए किस तरीके से अपने एरिया में रहना चाहिए, कैसे गाड़ी पार्क करनी चाहिए, किस तरीके से रूल्स फॉलो करने चाहिए। और सर, एज योर लॉन्ग स्पैन ऑफ 36 years that you have devoted to our society, thank you so much for that thing. So, like our Maharashtra approximately 12 CR population, Mumbai 2 CR around 10, like 2 crore 10 lakhs approximately. Sir, concentrated population of our policing force. Okay, so sir, in that force, sir, we have 0.8%
less than 0.8% into the above the rank of DSP, then 11.5% on the rank of supervisory official like inspector, and then 87% are constabulary in our force. So sir, you being from the same field, what you will do for 87%? ये 87 का आंकड़ा बहुत बड़ा है सर, उसके लिए क्या करोगे सर आप? देखिए 87% लोगों का, देखिए आपके लिए काम करें ये तो आपकी अपेक्षा है, सिटीजन्स के लिए काम करना चाहिए, लेकिन 87% की अपनी भी मजबूरियां हैं जिसके बारे में चर्चा होनी ज़रूरी है। ये 87% बेचारे जिस वक्त कांस्टेबल की तरह से आते हैं और ज़िंदगी में 30 साल नौकरी करने के बाद, 35 साल नौकरी करने के बाद ये बेचारे कांस्टेबल के लेवल पे ही रिटायर हो जाते हैं। मतलब एएसआई से पीएसआई भी हो गए तो कोई भी बहुत, मैंने कोशिश की कि वो रिटायरमेंट के समय पीएसआई बने और शायद गवर्नमेंट ने वो माना भी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या 87% के साथ फ्रस्ट्रेशन की है। फ्रस्ट्रेशन ये है कि उनको एक लेवल के बाद ऊपर जाने का मौका ही नहीं है। ये ब्रिटिश सरकार ने जब वहाँ थी तो उन्होंने इंपीरियल सर्विसेज शुरू की थी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस सर्विस थी। उनका करने का मकसद उनका स्वार्थ था, क्योंकि उनको हमारे लोगों के ऊपर रूल करना था। एक समय जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ तो उस वक्त शायद इतने एडमिनिस्ट्रेटिव और इतने कलीबर के लोग नहीं थे, इसलिए बड़ा बाबा साहब ने ये प्राविधान हमारे घटना में या कॉन्स्टिट्यूशन में किया कि ये ऑल इंडिया सर्विसेज होंगी। लेकिन आप देखिए वही ब्रिटेन अपने यहाँ कांस्टेबल को चीफ हेड बना देता है, और आज हमारे यहाँ यही कांस्टेबल बेचारा रिटायरमेंट के बाद बड़ी मुश्किल से आज पीएसआई होकर रिटायर होता है, वो भी पिछले कुछ सालों से। तो जब तक आप उनके तरफ 87% सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, रोड पे बेचारे कांस्टेबल ही दिखते हैं, कुछ भी होगा तो पुलिस वालों को हम कांस्टेबल को ही बात करते हैं। उनकी बेचारों की ज़िंदगी देखिए, आपके 10 बाय 10 के घर में भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत से लोग तो बदलापुर से यहाँ बेचारे ट्रैवल करते हैं, उनको यहाँ बीडीडी चौल वाल में जो घर है वो भी आज उनको पूरी तरह से मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, जो कि सालों साल वहाँ रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन लोगों का प्रमोशनल एवेन्यूज़ के बारे में बहुत चर्चा होनी ज़रूरी है। ये फ्रस्ट्रेशन ही कई बार रोड पे आपको दिखता है। ये आदमी को, मेरा ये मानना है कि आज 75-76 साल के इस अमृतकाल में हमारे इन कांस्टेबल्स को, और मैं किसी कांस्टेबल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन क्लर्क्स जो हमारे मिनिस्ट्रीज़ में और जो मंत्रालय में, ये लोग क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी बन सकते, ये लोग क्यों नहीं डीजी बन सकते। बहुत से इनमें ऐसे हैं जो कि डॉक्टर इंजीनियर्स हैं जिनके पास पीएचडी है हमारे यहाँ। जैसे मेरे बारे में किसी कांस्टेबल ने किताब लिखी है, वो ऐसा एकदम पूरा राइटर है वो। तो ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी को आप बढ़ाइए, लेकिन आप एग्ज़ाम रखिए। आप हर लेवल में, आज देखिए आज पुलिस में हर लेवल में उनको उनको रोड ब्लॉक लगा रहे हैं। पीएसआई के लेवल में आप डायरेक्ट एंट्री कराते हैं, डीवाईएसपी के लेवल पे आप डायरेक्ट एंट्री कराते हैं, आईपीएस के लेवल में आप डायरेक्ट एंट्री कराते हैं। क्या ज़रूरत है इनकी? जो अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, उसको आप एग्ज़ाम लीजिए, उसको ट्रेन करिए और उसको आप आगे बढ़ने दीजिए। ये सोच ब्रिटिश है, ये उन्होंने हमारे ऊपर लगाई। अब हमारे ख्याल से 75-76 साल, मुझको कभी मौका मिला, मैं तो वो छोटे से एस्पिरेशन लेके जा रहा हूँ, और जो अगर मौका मिला तो ये मुद्दा मैं नेशनली उठाऊँगा कि ये सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली इस तरीके की सर्विसेज जहाँ पर लोगों को रैंक की प्रॉब्लम होती है, और तो लोगों को, हमको जो उसमें सक्षम है उनको हेड बनने का मौका दीजिए। जुगर ये मौका आपने दिया, आप देखिएगा 87% फोर्स का चेहरा चेंज हो जाएगा, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आज मेरा कुछ होने वाला नहीं है। तो और उसके बाद भी सबसे ज़्यादा बेइज्जती उन्हीं की होती है वो, और जबकि वो सारे किसी के कमांड में काम कर रहे हैं। एंड सर, डू यू थिंक लाइक दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर करप्शन, लो इंसेंटिव? और देखिए, करप्शन के मुद्दे के बारे में बहुत बातें होती हैं, और मेरा ये मानना है कि करप्शन एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, और करप्शन सिर्फ कांस्टेबल तक लिमिटेड होगा, ये मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वो आदमी को कम तनख्वाह भी मिलती है। मैंने बहुत से ऐसे कांस्टेबल जानता हूँ जिन्होंने एक पैसा नहीं कमाया है, कभी ज़िंदगी में पुलिस स्टेशन की नौकरी ही नहीं की। मतलब बहुत से ऐसे हैं। तो सिर्फ कांस्टेबल्स ही करप्शन के बारे में मानना, सारा ये श्रृंखला है। और बहुत पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये करप्शन जो है ये सिर्फ कांस्टेबल या के कुछ सुपरवाइज़र तक ही सीमित नहीं है। ये श्रृंखला का अंत हमारे कांस्टेबलरी पर
से ही शुरू भी नहीं होती है, अंत भी नहीं होती है। So, sir, as a hierarchy from top to the lower hierarchy, so corruption is a dishonesty. It exists because your needs are not getting fulfilled. So, sir, as you mentioned, like you will be working on the welfare of the policing. So, it will cover all of the hierarchy, whether it's a top or the into middle or lower official. मेरा मानना है कि देखिए, जो अगर प्रमोशनल एवेन्यूज आदमी को नहीं मिलते, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्विसेज में प्रमोशन है। हाँ। आज अगर आप प्रमोशन ही नहीं देते, आज जो क्लर्क जो मंत्रालय में बैठा है, ज़्यादा से ज़्यादा अंडर सेक्रेटरी पे रिटायर हो जाता है। हाँ। उसको क्या है, उसका क्या मोटिवेशन है? तो इसी तरह से कांस्टेबल है, बहुत ज़्यादा होगा तो PSI बन जाएगा, वो भी पिछले 2 साल से जब मैंने वो GR गवर्नमेंट ने मान लिया। तो जो अगर आप ये फ्रस्ट्रेशन नहीं हटाएंगे हाँ। तो, और मेरा ये भी मानना है कि उनको सारे कांस्टेबल, कई बार न्यूज़ आती है कि कांस्टेबल लोगों के लिए घर की जगह बनाई गई, उसको किसी और ने कब्जा कर लिया और उसमें कुछ और बन गया। उनको एक रहने का, आप लोग देखते हैं लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, कांस्टेबल बेचारे नहीं घूम रहे हैं। कांस्टेबल तो अपनी नौकरी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो बड़े सीनियर ऑफिसर्स घूम रहे हैं। इन लोगों के पास क्या है? ये बेचारे, इनको तो ना रहने की जगह है, ना ही इनकी सैलरी उतनी ज़्यादा है, और ना ही इनको प्रमोशन होता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा अभी भी जो चल रहा है तो सब उन्हीं के ऊपर है कि भाई यही लोग सब गलत कर रहे हैं। वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, गलतियाँ सीनियर लेवल पे हो रही हैं और उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स नहीं होती हैं। और ये मान लेना कि DG रिस्पॉन्सिबल है, ये मान लेना कि CP रिस्पॉन्सिबल है। मेरे ऊपर भी केसेस चलते हैं कि वो DG साहब रिस्पॉन्सिबल है, DG जी रिस्पॉन्सिबल, मान लेना। मैं तो उस लेवल पे जाता हूँ कि वो भी किसी सर्वेंट के है, अल्टीमेटली सब सर्वेंट हैं, तो गवर्नमेंट कहाँ गई? मतलब गवर्नमेंट की कोई जवाबदारी नहीं हो गई। और इसलिए हमारे कांस्टेबल्स के बारे में मैं तो मानता हूँ, जो उनको आप प्रमोशन न्यूज़ देंगे, वो कांस्टेबल को अगर DG बनने का स्वप्न मेरा तो है कि अगर हुआ तो मैं ज़रूर इसके बारे में बात करूँगा। किसी तरह से क्लर्क को चीफ सेक्रेटरी बनना क्यों नहीं बने? और ये सब ज़रूरत नहीं है। एक समय हो गया है कि हमारे लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। ये सब रिक्रूटमेंट की और इस तरह के बाहर से लोगों को लाने की मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई आवश्यकता अब बची है। इसके बारे में लोगों को बहुत बड़ा डिबेट होने की ज़रूरत है कि साहब ये सिविल सर्विसेज एक लिमिट के बाद कुछ होगी टेक्निकल सर्विसेज जिनमें आपको चाहिए, लेकिन आप रेलवेज़ में देखिए ना, रेलवेज़ में एक शख्स आए, उन्होंने बहुत बड़ा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होता था, पूरी संस्था थी, उसको बंद ही कर दिया। शायद अब अच्छा भी हुआ, ख़राब हुआ मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन इस तरह के डिसीजंस आगे चल के देना चाहिए, लेने पड़ेंगे। और ये जब तक हम नहीं लेंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा। और करप्शन तो जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति विशेष है, एक रैंक पे लिमिटेड नहीं है, ये काफ़ी बड़ी इशू है। And so, like, we are on the concluding part of the episode. So majorly our audience are very youth. So sir, the youth, like one cases that you were dealing, you tweeted recently about rowdyism, like where a youth girl gang was harassing to the school goer, which happened, I'll not name the school, it happened in Yari Road. So what was yours, like could you please like guide our youth, like how to shape their mindset and their destiny? देखिए, ये सब मैं वही मानता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन है। कोई भी आदमी किसी आदमी के ऊपर हाथ उठाने के लिए नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से तैयार नहीं होता। जो अगर वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, उसके घर में उसको कोई प्रॉब्लम है, माँ बाप उसके साथ टाइम नहीं गुजार रहे हैं और माँ बाप उनको सही परवरिश नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे ही बच्चों का नुकसान, बच्चे गलत नहीं है, बच्चों की परवरिश गलत हुई है, इसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा रहे हैं। घर में सपोज करिए उनको कोई, उनके माता पिता जी उनके साथ प्यार करने के लिए उनके साथ बैठ, आज कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है क्योंकि कमाना भी है, तो लेकिन बच्चों के साथ जो अगर आप समय नहीं बिताएंगे और बच्चे जो अगर इस तरह के ग्रुप में जाके बातें करेंगे और देखेंगे तो इस तरह का होगा। और इसमें एक और बड़ा मुद्दा है कि आज हम 2 तरह के समाज में रह रहे हैं। एक तो हमारा रियलिटी है जो कि ज़मीन में हमें गंदगी और सब कूड़ा करकट और मच्छर और हर चीज़ देख रहे हैं, और दूसरा हम एक डिजिटल मीडियम है जिसमें हम वेस्टर्न सोसाइटी देख रहे हैं। तो अब वेस्टर्न सोसाइटी में थोड़ा बहुत एग्रेशन बच्चों में और इस तरह का, कई बार बहुत लोगों ने देखा है बच्चे लोग शूटिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मारामारी हो रही है अभी कई बार, उससे भी हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो अब बच्चों लोगों को इससे कैसे दूर करना है, तो माँ बाप की जवाबदारी है। मैं तो अपने बारे में जानता हूँ कि भाई हम लोगों को उस समय तो शायद टीवी उतना नहीं था, लेकिन
हम लोगों को पिक्चर दिखाने के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे। तो आज के जो भावी पेरेंट्स हैं उनको मुझे ये रिक्वेस्ट है आपके इस मीडियम से कि बच्चों को कम से कम सही वैल्यूज सिखाएं। ये मारामारी से एक किसी को आदमी को मारने से आपकी बॉडी भी उतनी ही हर्ट होती है। आप किसी को जो अगर हाथ से मारोगे तो आपके हाथ में भी चोट आएगी ना। तो जो अगर इतनी ही भावना जो अगर आज पेरेंट्स समझा सके तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो भद्र का काम जो हो रहा है, लड़कियां भी लड़कियों को मार रही है, कल भी मैंने एक ट्वीट में देखा, ये सब फ्रस्ट्रेशन है। और माँ बाप का सही समय अपने बच्चों के साथ ना देना और उनके मन में एक ऐसी भावना निर्माण करना कि यू आर जस्ट लेफ्ट ओवर्स, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और इसका जवाबदार मैं किसी और को नहीं बल्कि फैमिली को ठहराता हूँ। So it's basically the corruption of value system which happened in the family, which is a major reason of all which had happened, the incident. So sir, one message for youth from your lifeline, like कि reality कैसी ज़िंदगी कैसे चलती है सर? मैं तो सारे आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी लिखा है, आप अपने मन का जो आप पहले व्हाट इज़ योर हार्ट। आज मैं जहाँ गया, मैंने इंजीनियरिंग की, उस वक्त शायद मैं सोचने समझने में उतना नहीं था, लेकिन बहुत से लोग कहते थे नहीं आईआईटी है तो आईआईटी दिया। उसके बाद पुलिस की नौकरी में भी हमारे आजू बाजू लोग थे, उनको देख के मुझे लगा कि हाँ भाई, अरे इसमें तो बड़ा रुतबा होता है, ये सब है, तो मैंने ज्वाइन किया। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। लेकिन मैंने कोर्स करेक्शंस भी किए और मुझे जब लगा कि नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे इंजीनियरिंग को आजमाना चाहिए, तो मैंने इंजीनियरिंग आजमाई। और इंजीनियरिंग आजमाने के मुझे पूरे 12 साल मेरी कंपनी है, कंपनी चलती है। ठीक है, बहुत बड़ी नहीं है, जैसा छोटा मोटा काम हम साइबर सिक्योरिटी करते हैं वो चल रहा है। तो वो भी मैंने अपने अंतरात्मा मुझे कहाँ लेके जा रहा है। आज की तारीख में भी मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, तो मेरे में ये अंदर से आवाज़ है कि नहीं, आपको पॉलिटिक्स करनी चाहिए, आपको गवर्नेंस के बारे में बात करना चाहिए, एक ऐसा नायाब एग्जाम्पल करने का, लेट अस, you should take a plunge. So what are my entire message to the youth is that you should follow your heart. आपको क्या लगता है, आप अपने मन से क्या करना चाहते हैं, वो आपको, जब तक आप वैसे नहीं करेंगे तब तक आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आपके इस थॉट प्रोसेस को गाइड करने में फैमिली का थोड़ा बहुत रोल होना चाहिए। वो ये कि भाई हाँ, अगर आप कहेंगे नहीं साहब हम तो बंदूक लेके चोरी करना चाहते हैं, यही हमारा थॉट प्रोसेस है, तो उसको तो रोकना चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप सोसाइटी को ऊपर उठाने की कोशिश करें और अपने आप को कहाँ प्लेस करना चाहते हैं, अपने मन की आवाज़ से आप आगे बढ़ें तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। इसके लिए डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार के रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को रिकग्नाइज़ करना बहुत बड़ा एक अहम सवाल है और बहुत से लोग इसी में फेल होते हैं। It was one of the amazing episode sharing your lifespan, sir. Thank you so much for joining us. ये हमारी खुशनसीबी कि I am sharing a dice with the ex-DGP of Maharashtra, and we believe our audience, not only are a restricted audience, but across जहाँ ये हमारा episode जाएगा, will support you so that we can see the betterment in the society at not only grounds but at the top level. Thank you and a big salute to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.